Good good morning, kids. How are you all? So I hope you all have finished your work. You have finished your all your lessons, and as well as two paragraphs I had given you. So today we are going to start a next topic of our English, that is the backbone of English grammar. You know, beta, this topic is known to be the backbone. Backbone means, what is backbone? Backbone, you can say that one of the most important part of our body. So this tenses as our writing section is also based, and further we are going to learn several things like passive voice and indirect speech. Everything is based on these tenses only. So today we are going to start this next topic, tenses. Let's start. So first of all, what is a tense? Tense क्या है? The tense of a verb means the form of verb which shows the time and the state of an action. आपको ये पता चलता है कि काम किस समय हुआ है. The verb आपको क्या बताता है? Action, कि क्या काम हुआ है. और tenses आपको ये बताते हैं कि ये काम कब हुए हैं. This event had been taken place in the present, past और future. Present में हुए हैं, past में हुए हैं या future. So tense is classified as future, present, past. Past means the work that had been done. कोई काम जो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पुरानी बात, past. Present, present time, the thing that is going on. And future, any action that is going to happen in future or in coming time. आने वाले समय में जो काम होने वाला है, future. जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट. जो काम हो चुका है, पास्ट. मीन्स आप यू ऑल हैड कंप्लीटेड योर नोटबुक. पास्ट. राइट नाउ you are learning a new topic, present, and after it you have to solve your exercises in your book, that is the future. So further classification, as I told you, three main tenses: present, past, future. Okay, and in each tense you come to know about four different categories. Number one, indefinite. Number two, continuous. Number three, perfect. Number four, perfect continuous. आप देखेंगे सब में यही है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay, so these are the further classification of tenses. This table, particularly this table, you have to make it in your fair notebook. आपको कहाँ बनानी है? Fair notebook, and draw it very neatly. As you can see that with the help of scale and pencil you have to draw it very neatly. Now, so today's topic is present tense. But this is a very broad chapter, so we are going to read it in several parts. So today's topic is present tense. आज हम present tense पढ़ेंगे और present tense की ही exercises करेंगे. Okay, next time past, and after that future. So let's start. Present tense, as I already told you, four are there. Okay, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Now simple present tense. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? Simple present tense, जिसे हम present indefinite tense भी कहते हैं. फर्स्ट पार्ट आप ही देखेंगे. यस, वर्ब. अब देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं. इट एक्सप्रेसेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम की एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस एंड जनरल ट्रुथ. सबसे पहले हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शंस के लिए, जो आपकी हैबिचुअल एक्शन है. लाइक आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई गो टू स्कूल डेली,
Okay, I read a chapter daily. So these are the habitual जो आपकी एक्शन, तो हैबिट जो होती है आपकी हैबिट, दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड, जर्नल ट्रूथ. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये क्या है, ये जर्नल ट्रूथ है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड नेक्स्ट, एक्शंस दैट एक्सप्रेस इन जर्नल टाइम. जर्नल टाइम में जो होते हैं, लाइक योर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. आपके पापा कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में. माई मदर कुक्स फूड फॉर मी. सो दे आर द जर्नल एक्शंस. सो दे you are going to learn it with you are going to solve it with the help of present indefinite tense. तो आपको ये समझ में आए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. अगर आप देखेंगे अभी, देखिए प्रभु वॉक्स फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं. प्रभु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. बट अगर हम यहाँ पे प्लूरल कर दें बॉयज़, तो हो जाएगा बॉयज़ वॉक टू स्कूल एवरी डे. एस नहीं आता सिर्फ प्लूरल के साथ. ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये एस एंड ई एस, that already I told you in the last topic, that is subject verb agreement. अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वो टॉपिक भी दोबारा देख लीजिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि सिंगुलर के साथ हम एस यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ एस यूज़ नहीं करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रूल, एम इज़ आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. आपके सामने 3 सेंटेंसेज हैं, एक में इज है, एक में आर, एक में एम. ओके, दिस ऑलरेडी आई टोल्ड इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई प्रोनाउन जो है आई के साथ एम. सो व्हेन डू वी हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब आपको रूल समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया हम कैसे अप्लाई करते हैं. अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं. नंबर 1, एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ. जो काम अभी चल रहा है. शी इज़ कुकिंग इन द किचन. आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. यू आर लिसनिंग इट केयरफुली. सो द एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ, जो अभी काम हो रहा है. एक्शंस दैट आर टेम्पररी, एंड इफ सम टेम्पररी एक्शंस आर देयर, दे आर स्टेइंग इन लंदन फॉर अ फ्यू डेज. एक टेम्पररी, फॉर नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फॉर अ फ्यू डेज, so that is a temporary action. And if you are having definite future plans, I am going to do the exercise after this explanation. Yes, definite future plans, उसमें भी आप इस टेंस का यूज़ करते हैं. ओके बेटा, आप देख रहे हैं इसके साथ कुक ING कुकिंग, आर स्टे ING स्टेइंग, गो ING गोइंग. Next topic is third tense, present perfect tense. Read it with me. Present perfect tense. The present perfect tense is used to describe action that begin in the past and continues into the present and has just been completed. Means present perfect tense क्या है, वो action जो past में start हुआ था, प्रेजेंट में कंटिन्यू था और अभी अभी काम ख़त्म हुआ है. यू हैव जस्ट रीड पार्ट 2. अभी आपने क्या पढ़ा, पार्ट 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट वो हमने पढ़ लिया ना, वो ख़त्म हो चुका है ना टॉपिक, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव, वर्ब्स थर्ड फॉर्म. सारे रूल्स बेटा आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको. So no need to panic, just listen carefully. Has, have, verbs, third form. और वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, प्लूरल के साथ have, सिंगुलर के साथ has. ये तो आप बेटा सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, has, have. प्लूरल के साथ have, सिंगुलर के साथ has. Verbs, third form. Now
the last part of this topic, present perfect continuous. अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं. हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्शन दैट इज़ बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और बट अभी भी वो एक्शन चल रहा है. आई हैव बीन प्लेइंग, मैं अभी भी खेल रही हूँ. कब से? पास्ट से खेलना स्टार्ट किया था और प्रेजेंट में भी वो एक्शन कंटिन्यू है, अभी भी वो काम चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैज़, हैव, आपको पता ना हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं, बताइए. वेरी गुड. हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ. देन बीइंग एंड अब हमने क्या किया? हमने हेल्पिंग वर्ब तो लिया परफेक्ट का, हैज़, हैव, बीन ऐड करके, और वर्ब की फॉर्म किसके लिए? कॉन्टिन्यूस की, ing, प्ले ing, प्लेइंग. ओके, वेरी गुड. सो these are the rules with the help of examples. Number 1, simple present tense, subject verb first form, es, s और es. ये मैंने आपको बताया था ना. she reads, singular है, reads book in library. Continuous is mring, I am, study ing, studying in a high school. Present perfect tense has a verbs थर्ड फॉर्म, ही हैज़ मेड. और बेटा अगर ही की जगह यहाँ पे दे होता तो आ गया ना समझ में आपको? दे के साथ आएगा हैव मेड. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ हैव परफेक्ट, हमने उठाया परफेक्ट का हैज़ हैव, बीन, और वर्ब फर्स्ट ऑफ ing किसका पार्ट है? कॉन्टिन्यूस का. तो बन गया ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2017. सिंस और फॉर के यूज़ के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग अलग से भेजूंगी. ओके, सो टिल दैट रीड इट केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइजेस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.